Our first passage is the origin of writing, and question number 1 2 3 है गया blanks fill करनिया ने. First of all अपने सारा paragraphs ਨੂੰ A to I markings दे लो. Let's start with the first question. There are three types of writing systems. Logography utilizes written signs representing a dash. Logography ਜਿਹੜੇ signs use ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ represent ਕਰਦੇ ਨੇ? The answer is word. देखो अपने paragraph B ਵਿੱਚ देखो logographic as it uses logograms which are written signs that represent a word nu represent ਕਰਦੇ ਨੇ. So the answer is word. Next are जो syllabic writing systems are more common in the ancient world as they adopt written sign symbolizing dash. ਜਿਹੜੇ सिलेबिक राइटिंग सिस्टम्स ज़्यादा कॉमन ने एज अ की अडोप्ट करते हैं रिटन साइन की सिंबोलाइज करते हैं. द आंसर इज़ सिलेबल. देखो अपने पैराग्राफ बी विच ही दीज इन्वॉल्व द रिटन साइन और लेटर रिप्रेजेंटिंग द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम सच एज सुमेरियन क्यूनिफॉर्म Egyptian hieroglyphics and Mayan glyphs are predominantly logographs. ठीक है. After that on where the written signs represent syllable, the writing system is known as syllabic. Syllabic writing system च ਜਿਹੜਾ written sign को represent करता है syllable ਨੂੰ. So the answer is syllable. Next है the most common alphabetical system use a letter to represent dash. ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ common alphabetic system है ਉਹ ਕੀ use करता है ਕੀ represent करता है ਜਿਹੜਾ letter है. The answer is a single sound or phoneme. देखो the most common writing system today are alphabetical. These involve the written sign a letter representing a single sound known as phoneme. ठीक है. की represent करता single sound ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ phoneme. So the answer is either single sound या फिर phoneme. Next आ जाओ true false not given ते. There is no language that adopts elements from only one writing system. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ language नहीं हैगी ਜਿਹੜੀ सिर्फ एक writing system ਤੋਂ elements adopt करती है. The answer is true. देखो in your paragraph B, no written language is purely alphabetic, syllabic or logographic, but may they use elements from any or all system. कहते कोई भी ऐसी written language नहीं हैगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ purely alphabetic है या syllabic है या logographic है, but ਕੀ ਨੇ है ना ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यूज़ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ एलिमेंट. ठीक है. मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. सो द आंसर इज़ ट्रू. फिफ्थ देखो इंका क्विपस यूज्ड टेलीस्टिक्स टू ट्रैक पेमेंट्स एंड कमर्शियल ट्रांसैक्शंस. कहते जोड़े इंका क्विपस सीगे टेलीस्टिक्स में यूज़ करते सी किहदे वास्ते पेमेंट्स ते कमर्शियल ट्रांसैक्शंस नू ट्रैक करन वास्ते. द आंसर इज़ फॉल्स. देखो अपने पैराग्राफ सी विच इत्थे लिख रहे ने नोटेड स्ट्रिंग्स हैव बीन यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. ठीक है. ਜਿਹੜੇ नोटेड स्ट्रिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਲਈ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਦੇ ਰੀਚ देयर ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट विद द इंका क्विपस वेयर दे वर यूज्ड टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट एंड टू रिकॉर्ड कमर्शियल ट्रांसैक्शन. मतलब की सी नोटेड स्ट्रिंग्स यूज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾ ਕਿ ਟੈਲੀਸਟਿਕਸ. ਟੈਲੀਸਟਿਕਸ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਪ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਡੈਟ ਐਟਸੈਟਰਾ. ठीक है. बट क्वेश्चन कह रहे हैं कि टेलीस्टिक्स यूज़ कर होंदी सी पेमेंट्स ट्रैक करने. सो द आंसर इज़ फॉल्स. सिक्स्थ इज़ नॉट गिवन. सेवंथ देखो द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज was created to document the quantities and types of livestock and food. कहते जी सब तो पहली रिटन लैंग्वेज सीगी वो की सीगी डॉक्यूमेंट करती सी क्वांटिटीज़ ते टाइप्स ऑफ लाइवस्टॉक एंड फूड. द आंसर इज़ ट्रू. देखो the first written अपने पैराग्राफ ई विच the first written language was Sumerian cuneiform. Writing mainly consisted of records of numbers of sheep. मतलब quantities आ गया goats cattle quantities of grain. ठीक है. किस किस चीज़ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ sheep goats ਤੇ cattle मतलब कि ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਆ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਆ. ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨ मतलब कि ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ. 8th ਦੇਖੋ यूनीफॉर्म कुड नॉट एक्सप्रैस एबस्ट्रैक्ट कंसैप्ट्स एट ऑल. कहते ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ यूनीफॉर्म ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ. ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ. ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ यूनीफॉर्म ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. अर्ली यूनीफॉर्म वुड बी अ वर्ड. ठीक है. दैन ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇਗੇ. ठीक है. दैन कह रहे हैं however while the symbol became more closely connected to word it was words
dealing with objects such as sheep, bird or pot, it was still not possible to write more abstract ideas such as father, running, speech or foreigner। कहते ज़्यादा abstract ideas लिखना possible नहीं सीगा, ठीक है, बट कुछ abstract ideas लिख लैंदी सी, बट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जमा ही नहीं सी abstract concepts ਨੂੰ express कर पाती। इत्थे कह रहे हैं कि ज़्यादा abstract ਨੂੰ नहीं सी express कर पाती। So the answer is false। 9th देखो, affected by रीबस प्रिंसिपल, यूनीफॉर्म कंबाइंड द एलीमेंट्स ऑफ बोथ लोगोग्राम्स एंड सिलेबिक राइटिंग। जड़ा रीबस प्रिंसिपल सी उहदी वजह ते इन्हें लोगोग्राफिक ते सिलेबिक दोनों राइटिंग्स के एलीमेंट कंबाइन करते। द आंसर इज ट्रू। देखो इन योर पैराग्राफ एच, द रीबस प्रिंसिपल लेड टू यूनीफॉर्म बिकमिंग अ लॉन्ग सिलेबिक राइटिंग कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लोगोग्राम्स एंड सिलेबिक राइटिंग। ठीक है, कहते यूनीफॉर्म ने की करता, लोगो सिलेबिक राइटिंग बन गई, की कंसिस्ट सी दोनों लोगोग्राम भी सीगे ते सिलेबिक राइटिंग भी, मतलब वो एलीमेंट्स की करते सी इन्हें कंबाइन करते सी। सो द आंसर फॉर 9th इज ट्रू। 10th इज नॉट गिवन। दैन आ जाओ 11th ते, डेवलप द एल्फाबेट फ्रॉम इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स। कहते इन्हें एल्फाबेट नू डेवलप किया इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स तो। द आंसर इज सी, सीमाइट्स। देखो इन योर पैराग्राफ आई, इत्थे लिख रहे हैं आफ्टर अबाउट 1700 BC Semites who knew Egyptian hieroglyphs began making certain changes in their writing system। ठीक है, सिमाइट्स जिन्होंने इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स बारे पता सी वो अपने राइटिंग सिस्टम च उस चीज़ तो लाइक इन्फ्लुएंस होकर की करन लग गए, चेंज लियान लग गया अपने राइटिंग सिस्टम च। ठीक है, सो की है मतलब इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स तो उन्होंने की कीती, अपनी अल्फाबेट डेवलप की। ठीक है, अपनी राइटिंग च चेंज लिया। ठीक है, दैट मीनस ओबवियसली वो तो होकर इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपनी जी सी चेंज की। द आंसर इज देयरफॉर सी। 12th देखो, यूज्ड पिक्चर्स फॉर द परपज़ ऑफ कम्यूनीकेशन। कम्यूनीकेशन के परपज़ वास्ते पिक्चर्स नू यूज़ करते सी। द आंसर इज बी, नेटिव अमेरिकन्स। देखो अपने पैराग्राफ सी विच, सच फुली देखो अ स्पेशली ट्रेंड ग्रुप ऑफ पीपल मेकर्स एंड रीडर्स मैनेज द होल सिस्टम। द यूज़ ऑफ पिक्चर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्यूनीकेशन वाज यूज्ड बाय नेटिव अमेरिकन्स। नेटिव अमेरिकन्स कम्यूनीकेशन वास्ते की यूज़ करते सी, पिक्चर। ठीक है, सो द आंसर फॉर 12th इज बी। 13th देखो, इन्वेंटेड अ रिटन लैंग्वेज विच कंसिस्टेड ऑफ साइंस लुकड लाइक वैजिज। कहते इन्होंने ऐसी रिटन लैंग्वेज इन्वेंट की जिस साइंस वैजिज की तरह दिखते सी। द आंसर इज ई, सुमेरियंस, एंड इट्स इन योर पैराग्राफ ई। देखो इवेंचुअली द पिक्चर्स बिकेम मोर एबस्ट्रैक्ट एंड वर टू कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट लुक लाइक वैजिज। कहते जी इवेंचुअली पिक्चर्स ज़्यादा एबस्ट्रैक्ट बन गई तो उन्होंने की सी स्ट्रेट लाइन्स सी जी वैजिज की तरह लुक दिखदियाँ सी, और एक इन्होंने कीतियां सुमेरियन पीपल ने। सो द आंसर इज देयरफॉर सुमेरियन। 14th आ जाओ, माइट हैव इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड राइटिंग 5000 ईयर्स अगो। 5000 साल पहला इन्होंने इंडिपेंडेंटली राइटिंग की होनी, इन्वेंट की होनी। द आंसर इज ए, इजिप्शियंस। देखो अपने ए पैराग्राफ से इत्थे लिखा है, इट मे हैव बीन इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड इन इजिप्ट अराउंड 3000 BC। ठीक है, कहते अराउंड 3000 BC बिच की इन्होंने इंडिपेंडेंटली राइटिंग इन्वेंट की। ठीक है, 3000 साल तो वो वाले हो गए, 2000 हुण पास हो चुके। ओबवियसली हम आप 2021 चल रहे हैं ना, तो 2000 साल वो पास हो चुके, 3000 आ टोटल किन्ने साल हो गए, 5000। ठीक है, सो 5000 ईयर्स पहला की इजिप्ट ने मे हैव इन्वेंटेड राइटिंग इंडिपेंडेंटली। सो द आंसर इज देयरफॉर ए। नैक्सट आ जाओ अपने सैक्शन 2 ते, एक्वा प्रोडक्ट न्यूजीलैंड्स एल्गे बायोडीजल। देखो इत्थे क्वेश्चन नंबर 15th to 19th है, आप दसना है कि किहड़े पैसेज इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो 15th, इट इज़ अननेसैसरी टू मॉडिफाई व्हीकल्स ड्रिवन बाय बायोडीजल। कहते हैं अननेसैसरी है, कोई जरूरत नहीं किस चीज़ की व्हीकल्स नू मॉडिफाई करने की जिहड़े कि ने बायोडीजल ते चलते हैं। द आंसर इज इन डी। देखो blended with conventional mineral diesel, biodiesel can run vehicles without the need for vehicle modification। कहते बायोडीजल नाल व्हीकल्स चल सकते हैं और उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन की भी की है ज़रूरत नहीं हैगी, देयर इज़ नो नीड। ठीक है, दैट मीनस इट इज़ अननेसैसरी वे। अगर कोई ज़रूरत ही नहीं हैगी मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन अगर करांगे तो अननेसैसरी होएगी। सो द आंसर इज डी। 16th देखो, सम एल्गे आर कंसीडर्ड एडिबल प्लांट्स। कुछ एल्गे ने जोड़े एडिबल प्लांट्स कंसीडर किए जाते हैं खाण योग। द आंसर इज ई। देखो नेचुरली ग्रोइंग सीवीड आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड स्पेशली इन एशिया, एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड ने, दैट मीनस एडिबल ने, दे प्रोवाइड मैनी विटामिन्स एक्सैट्रा, ना सारा दस्या होया। ठीक है, दैट मीनस की है एडिबल है, खाण लायक है जी एल्गी है। सो द आंसर इज ई। 17th देखो,
एल्गे कुड बी पार्ट ऑफ अ सस्टेनेबल एंड रिसाइकल्ड सोर्स कहते ਜਿਹੜੇ एल्गे ने एक सस्टेनेबल ਤੇ रिसाइकल्ड सोर्स ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾर्ट हो सकते हैं। द आंसर इज सी। देखो a biodiesel based on algae could vegetable oil then eventually become a sustainable low cost ਤੇ cleanser burning fuel sustainable है low cost है ਤੇ cleanser fuel है ठीक है alternative है किस वास्ते न्यूजीलैंड ਲਈ ठीक है। अगे देखो इत्थे कह रहे हैं है ना इट इज़ ऑल्सो रेडिली अवेलेबल ठीक है मतलब की है ईजीली की हो सकता है रिसाइकल किया जा सकता है ठीक है मतलब है ना पॉन्ड्स वगैरह चो इनू कलैक्ट करके ठीक है दैन मतलब की करते हैं भाई सारी प्रोसैसिंग कर देंगे ठीक है। सो की है एक रिसाइकल्ड सोर्स है तो सस्टेनेबल है। सो द आंसर इज सी। 18th देखो एल्गे बायोडीजल इज सुपीरियर टू अदर बायोडीजल फ्यूल्स इन लॉट ऑफ वेज कहते जो एल्गे बायोडीजल है वो अदर बायोफ्यूल्स तो लॉट वेज सुपीरियर है। द आंसर इज जी पैराग्राफ कही गई है गल। देखो अनलाइक सम बायोफ्यूल्स विच रिक्वायर क्रॉप्स टू बी स्पेशली ग्रोन एंड देयर बाय compete for land use with food production and use other scarce resources of fuel chemical and fertilizer the source of algae based biodiesel already exists extensively and the process produces a sustainable net energy gain by capturing a free solar energy from the sun कहते बाकी बायोफ्यूल्स की तरह नहीं भी जिन्होंने है ना स्पैशली क्रॉप्स की लोड़ होंगी उन्होंने है ना स्पैशल लैंड मिलता फूड प्रोडक्शन अफेक्ट करती है और चीज़ स्कार्स सोर्सिज लाइक फ्यूल कैमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करती है। बट जोड़ा हाँ एल्गे बेस्ड बायोडीजल है एक्सटेंसिवली बहुत जगह एल्गे मिलती है ठीक है तो यह की है अलॉट बैटर है की है सब कैप्चरिंग सोलर एनर्जी है ना कैप्चर करके अपनी सारी कर दी है ना एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है। सो ये की है सारे नालों बैटर है। 19th देखो ओवरग्रोन एल्गे ऑल्सो कैन बी अ पोटेंशियल थ्रेट टू एनवायरमेंट कहते जो ओवरग्रोन एल्गे है वो इन्वायरमेंट वास्ते एक थ्रेट हो सकता है। द आंसर इज एफ। देखो although algae are good at taking most of the nutrients out of sewage too much algae can taint the water and make it smell कहते although जो algae है वधिया चीज़ है nutrients वगैरह नू सीवेज चो बाहर कढ़ देंदा ठीक है बट ज़्यादा algae वाटर नू टेंट कर सकता है ठीक है उन्होंने पोल्यूट कर सकता है तो वो चो स्मैल आन ला सकता है दैट मीनस की है इट इज़ अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। सो द आंसर इज एफ। नैक्सट आ जाए 22-24 समरी कंप्लीट करनी है। बायोडीजल based on algae could become a substitute for dash in New Zealand which biodiesel की बन सकता है substitute। the answer is fuel। देखो in your paragraph C इत्थे लिखा है biodiesel based on algae become a substantially low cost cleanser burning fuel alternative मतलब सब्सटीट्यूट किस चीज़ का फ्यूल का कितने न्यूजीलैंड च ठीक है। सो द आंसर इज़ फ्यूल सब्सटीट्यूट फॉर फ्यूल इन न्यूजीलैंड। इट कुड बी यूज्ड टू डैश वहीकल्स नू की करन लई यूज़ किया जा सकता। द आंसर इज़ पावर। देखो इत्थे लिखा होया पावरिंग फैमिली कार्स ट्रक्स बसिस एंड बोट्स इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अदर परपजेज ठीक है। व्हीकल्स नू कार्स एंड बोट्स नू की करूगा है पावर। सो द आंसर इज पावर। आ देखो इत्थे पावरिंग लिखा होया तो द आंसर इज पावर। नेक्स्ट आ जाओ एज अ रिजल्ट बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ बायोडीजल आर रिक्वायर्ड वर्ल्ड वाइड ईच ईयर एल्गे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश विद न्यूट्रिएंट मटीरियल्स एल्गे कित्थों मिल सकते हैं अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट मटीरियल्स। द आंसर इज वेस्ट स्ट्रीम्स। देखो algae are also readily available and produced in large volumes in nutrient rich waste streams ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ nutrient rich ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ nutrients ਨੇ। so the answer is waste streams। next ਆ ਜਾਓ with the help of with the technology breakthrough algae are extracted and the dash removed from the settling ponds algae ਕਹਿੰਦੇ extract ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ponds ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ remove ਹੋ ਜਾਂਦਾ। the answer is contaminant। ਦੇਖੋ by removing the main contaminant to use as a fuel feedstock algae ਨੂੰ as a fuel feedstock यूज़ किया जाता। तेनों इत्थे की कह रहे हैं एक contaminant है कित्थों रिमूव किया जाता है पॉन्ड्स वगैरह चो ठीक है। आ देखो हेल्ड इत्थे आपां पढ़िया सीगा सच एज सैटलिंग पॉन्ड्स ठीक है पॉन्ड्स विचों कि यह रिमूव किया जाता है एज अ मेन कंटैमीनेंट। सो द आंसर इज कंटैमीनेंट। नैक्सट आ जाओ डेयरी फार्मर्स एंड मैनी फूड प्रोसैसर्स कैन अडॉप्ट सच डैश टैक्नोलॉजी किहड़ी टैक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं डेयरी फार्मर्स ते फूड प्रोसैसर्स। द आंसर इज हारवैसटिंग टैक्नोलॉजी। देखो पैराग्राफ सी विच ही डेयरी फार्मर्स एंड मैनी फूड प्रोसैसर्स टू कैन बेनिफिट इन सिमिलर वेज बाय अप्लाइंग द हारवैसटिंग टैक्नोलॉजी इज हारवैसटिंग टैक्नोलॉजी। सो द आंसर इज हारवैसटिंग। नेक्स्ट आ जाओ 25th द वट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड
वुड बायोडीजल व्हीकल्स आर टू मीट ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਆਹ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਵਹੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ B5 ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ 'ਚ fuel derived from algae can also help meet the government B5 target 5% blended ठीक है ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ B5 so the answer is government B5 next देखो 26th what is to do as the immediate plan for coming years of aquaflow coming years ਵਿੱਚ aquaflow ਦਾ ਕੀ immediate plan ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ the answer is increase capacity our next step is to increase capacity to produce 1 million liters of air from Marlborough sewerage ponds over the next year ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ capacity increase ਕਰਨੀ ਹੈ so the answer is increase capacity next देखो 27th what through what kind of process do algae obtain and store energy ਕਿਹੜੀ process ਦੇ through algae ਜਿਹੜੇ energy obtain ਤੇ store ਕਰਦੇ ਆ the answer is photosynthesis देखो अपने पैराग्राफ F ਵਿੱਚ algae are the simplest plant organisms that convert sunlight and carbon dioxide in the air around us into stored energy through the well understood process of photosynthesis ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ એનર્ਜੀ obtain ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so the process is photosynthesis नेक्स्ट आ जाओ अपने सेक्शन 3 ते ब्रिटिश आर्कीटैक्चर देखो क्वेश्चन नंबर 28 टू 34 ब्लैंक्स ने अपने को द एंग्लो सैक्सन आर्कीटैक्चर फेल्ड टू लास्ट बिकॉज द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन डैश कहते जो एंग्लो सैक्सन सीगा आर्कीटैक्चर ऑफ फेल्ड क्यों हो गया लास्ट क्यों नहीं कर पाया ज़्यादा टाइम क्यों नहीं टिक पाया बिकॉज द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द आंसर इज वुड देखो इन योर पैराग्राफ ए एंड ऑल्दो एंग्लो सैक्सन्स हैड अ सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग स्टाइल ऑफ देयर ओन कहते चाहे उन्होंने खुद का एक सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग स्टाइल सीगा लिटल सर्वाइव्स टू बीयर विटनेस टू देयर अचीवमेंट बहुत घट जो उन्होंने मतलब है ना बिल्ड किया उन्होंने बहुत घट सर्वाइव करता उन्होंने अचीवमेंट का विटनेस एज अ विटनेस मतलब उन्होंने अचीवमेंट दिखाने लिए तो बहुत घट एविडेंस है ना उन्होंने बनाए बहुत घट चीज़ें सर्वाइव करदियाँ ने वाई as the vast majority of Anglo-Saxon buildings were made of wood because as ਜਿਹੜੀਆਂ buildings ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ made of wood ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ so the answer is wood 29th ਦੇਖੋ different from the medieval architecture the buildings of 16th century represent dash ਕਹਿੰਦੇ medieval architecture ਤੋਂ different ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 16th century ਦੀਆਂ buildings ਸੀ ਉਹ ਕੀ represent ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ the answer is status and wealth देखो इतने सारे 16th century देखो in a sense the buildings of 16th century were also governed by fitness for purpose only now the purpose was very different कहते हुण purpose बहुत different आ ठीक है in domestic architecture in particular buildings were used to display status and wealth की चीज़ display कर दिया सी represent कर दिया सी status and wealth so the answer is therefore status and wealth next आ जाओ the costly glass was applied widely as an dash in that years ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ costly glass ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ as what use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ the answer is expensive commodity देखो अपने पैराग्राफ C ਵਿੱਚ सॉरी इन योर यस इन योर पैराग्राफ C देखो इतने लिखा होया the rooms themselves tended to be bigger and lighter as an expensive commodity the use of great expenses of glass was itself a statement of wealth ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ 31st ਤੇ इंडिगो जोन्स वाज अ स्किल्ड एट हैंडलिंग डैश स्टाइल्स इंडिगो जोन्स केड़ा स्टाइल वधिया तरीके हैंडल कर लैंदा सी द आंसर इज क्लासिकल द देखो इत्थे पैराग्राफ डी विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिगो जोन्स हुज confident handling of classical detail and proportion set him apart from all other architects of the period किस चीज़ ਨੂੰ confidently handle कर ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ skilled ਸੀਗਾ handle ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ style ਨੂੰ classical so the answer is therefore classical next ਆ ਜੋ 32nd William Morris favored the production of dash made in pre-industrial manufacturing techniques ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਮੌਰਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ pre-industrial manufacturing techniques the answer is furnitures and textiles ਦੇਖੋ Morris in paragraph F which Morris influence grew from the production of furniture and textile until by the 1880s a generation of principled young architects was following his call for good honest construction ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਹੋਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ
नेक्स्ट आ जाओ 33rd ते द आर्कीटैक्ट्स सच एज डैश प्रोवाइडेड द लैंडलॉर्ड विद कंजरवेटिव हाउसेस किस तरह के जिहड़े आर्कीटैक्ट्स ने जिहड़े लैंडलॉर्ड से उन्होंने कंजरवेटिव हाउसेस नाल प्रोवाइड किया सी। द आंसर इज एडवर्ड लटिन्स। देखो इत्थे लिखा होया पैराग्राफ एफ विच whilst Gropius was working on cold hard expanses of glass and Le Corbusier was experimenting with the set of reinforced concrete frames, we had establishment architects like Edwin Lutyens producing neo-Georgian and Renaissance country houses for an outmoded landed class। ਜਿਹੜੇ landed ਲੋਕ ਸੀਗੇ landlord ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ Renaissance ਤੇ ਹਨਾ Renaissance मतलब है ना पुराने ठीक है कंट्री हाउसेस बनाए ठीक है मतलब किहड़े सी कंजरवेटिव हाउसेस बनाए किन्हां दे एडविन लुटियंस वर्गे आर्कीटैक्ट्स ने। सो द आंसर इज दिस। 34 देखो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द आर्कीटैक्ट कमीशन शिफ्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल टू डैश अथॉरिटी डैश वर्ल्ड वॉर 2 तो बाद जो आर्कीटैक्ट कमीशन से वो इंडिविजुअल तो कितने शिफ्ट हो गया। द आंसर इज लोकल अथॉरिटीज़। देखो इनर पैराग्राफ जी लोकल अथॉरिटीज़ चार्ज विद द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग क्ले सेंटर। लोकल अथॉरिटीज़ नूं चार्ज किया गया सी टास्क नाल भी रीबिल्ड करो क्ले सेंटर्स ना सारा मतलब आर्कीटैक्ट कमीशन सी जिहड़ा ठीक है। एंड किस तरह कदों होया आफ्टर द सैकेंड वर्ल्ड वॉर सिचुएशन बिगिन टू चेंज ठीक है। एंड की होया लोकल अथॉरिटीज़ नूं चार्ज दे दिता गया जिहड़ा सीगा आर्कीटैक्ट कमीशन सीगा किनूं दिता गया लोकल अथॉरिटीज़ नूं। सो दिस इज़ द आंसर। नैक्सट आ जाओ 35 to 40 MCQs ने। द फीचर ऑफ मेडिवल आर्कीटैक्चर वॉस मेडिवल आर्कीटैक्चर का की फीचर सीगा। द आंसर इज बी यूजफुल। देखो इन पैराग्राफ बी एंड इट इज़ ऑल्सो द मोर रिमार्केबल बिकॉज अंडरलाइंग इथोस ऑफ मेडिवल आर्कीटैक्चर वॉज फिटनेस फॉर परपज़। अंडरलाइंग इथोस की से मतलब बेसिक है ना फीचर की सीगा मेडिवल आर्कीटैक्चर का फिटनेस फॉर परपज़ परपज़ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ है ना भी फिट फॉर परपज़ है कि हाँ बस ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ परपज़ है ਉਹਦੇ ਲਈ बिल्कुल फिट है ठीक है। दैट मीनस की है ये यूजफुल है ठीक है जी। सो द आंसर इज बी यूजफुल। 36 देखो वट कंट्रीब्यूट्स टू द आउटवर्ड लुकिंग बिल्डिंग्स इन द 16th सेंचुरी। ਜਿਹੜੀਆਂ 16th सेंचुरी ਦੀਆਂ आउटवर्ड लुकिंग बिल्डिंग सी ਉਹ मतलब ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ किस चीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन करके। द आंसर इज ए सेफ्टी। देखो इन योर पैराग्राफ सी इत्थे गिवन है A greater sense of security led to more outward looking buildings। सिक्योरिटी दी सेंस करके सेफ्टी दी सेंस करके की है ज़्यादा आउटवर्ड लुकिंग बिल्डिंग्स बन गई। सेंस ऑफ सिक्योरिटी led to contributed to outward looking buildings। सिक्योरिटी मीन्स हेयर सेफ्टी। सो द आंसर इज ए। 37 देखो why were the buildings in the 1660s influenced by latest European trends। कहते जी 1660s बिल्डिंग सीगियां लेटेस्ट यूरोपियन ट्रेंड्स तो क्यों इन्फ्लुएंसड सीगियां। द आंसर इज डी बिकॉज द मोनार्क्स केम बैक फ्रॉम दी कॉन्टीनेंट क्योंकि जोड़े मोनार्क्स सी कॉन्टीनेंट तो वापस आ गए सी। देखो इन योर पैराग्राफ डी इट इज़ गिवन where there they came into contact with French, Dutch and Italian architecture with Charles restoration in 1660। there was a flurry of building activity as royalists reclaimed their property। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ property reclaim ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ built themselves houses reflecting the latest European trends है ना। मतलब ਜਦੋਂ ਆ वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ है ना ਕੀ ਆ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ है ना ਦੂਜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਸੀਗੀਆਂ। 38 ਦੇਖੋ ਵਟ ਕਾइंड ऑफ सेंस डिड द ब्रिटिश बैरोक इंप्लाई। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਰੋਕ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਟਫ। देखो द ब्रिटिश बैरोक was a resurrection of authority, an expression of absolutist ideology by men who remembered a world turned upside down during the civil war। this style is heavy and rich। heavy ਤੇ rich style है tough है that means ठीक है sometimes overblown and melodramatic ठीक है। मतलब की है कहते उन्होंने लोगों द्वारा है ना मतलब सीगा एक रिजर्शन सी अथॉरिटी दी उन्होंने लोगों है ना जिन्होंने लोगों को है ना याद से कि सिविल वॉर टाइम कितना कुछ होया ठीक है उन्होंने वालों ये जड़ा ब्रिटिश बैरोक सी है ना बनाया गया सीगा ते की सी हैवी ते रिच सीगा डैट मीनस ये की सी टफ सीगा। सो द आंसर इज ए टफ। 39th देखो द इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन वाज नो मोर द की टू क्रिएशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ डैश।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫॉर द अपीयरेंस ऑफ वट द आंसर इज सी इंडस्ट्रीयल प्रोसेस इन स्केल देखो मास प्रोडक्शन resulted in buildings paragraph E which mass production resulted in buildings that and furnishing that were too perfect ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਹੈਡ ਅ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਰੋਲ ਮੇਜਰ ਰੋਲ KEY ਕੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖੋ even before this confidence in progress came to be regarded with suspicion ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਐਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ C 40th ਦੇਖੋ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਡ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ C ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਚੀਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ देयर वाज अ डेस्परेट नीड फॉर चीप हाउसिंग विच कुड बी प्रोड्यूस्ड क्विकली ठीक है आफ्टर द सैकेंड वर्ल्ड वॉर की गल हो रही है इत्थे ठीक है देयर वाज अ डेस्परेट नीड फॉर चीप हाउसिंग विच कुड बी प्रोड्यूस्ड क्विकली the use of prefabricated elements metal frames concrete cladding and the absence of decoration all of which had been embraced by modernists abroad and viewed with suspicion by British were adopted to varying degrees for housing developments and schools ਕਹਿੰਦੇ cheap housing ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ different degrees 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਚੀਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਨੀਡ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮਸ ਕੰਕਰੀਟ ਕਲੈਡਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਚੀਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵੇਰੀਇੰਗ ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰਫੋਰ C shortage of cheap housing. This is the end of your reading. Thank you.